السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین. آمین ثم آمین. اسٹارٹ کرتے ہیں کلاس کا. تھوڑا سا ریکیپ. ہم اسم کے فیکٹرز عناصر پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے عربک میں ایک اسم کو کس طرح سے پہچاننا ہے. ہم نے ابھی تک جنس پڑھا، عدد پڑھا، وسعت کو پڑھا اور اعراب کو ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اعراب کا میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی اسم کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے معنی کی تبدیلی کے بغیر وہ کیا کہلاتی ہے؟ اعراب کہلاتی ہے. اب اعراب کی بنا کے اوپر، اعراب کی بیس پہ ہم اسما کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، یا تو وہ معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں. یعنی اعراب کے بدلنے سے اگر تو اسم کی شکل تبدیل ہو رہی ہے تو ایسا اسم کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. اور اگر اسم اپنی شکل تبدیل نہیں کر رہا تو وہ مبنی اسم کہلاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اعراب میں کتنی حالتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. 3 اسم کی 3 فعل کی، ٹوٹل 4 ہوتی ہیں. جو جر ہے وہ فعل میں نہیں ہوتا، وہ صرف اسم میں ہوتا ہے، اور جو جزم ہے وہ صرف فعل میں ہوتا ہے. اور ابھی ہم لوگ اسما کا اعراب پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ فی الحال 3 ہی حالتوں کو ذہن میں رکھیں گے: رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے. اور اعراب کی حالتوں کے حساب سے اسما کی جو شکلیں ہیں یا تو وہ حرکات کی صورت میں بدلتی ہیں یا حروف کی صورت میں بدلتی ہیں. ٹھیک ہے. اس حساب سے ہمارے پاس 7 کیٹیگرائزیشن تھی معرب اسما کی، کہ جب ان کی حالت بدلتی ہے، اعراب بدلتا ہے، تو جو ان کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ حرکات کے تھرو آتی ہے یا حروف کے تھرو آتی ہے. ٹھیک ہے. حرکات کے حساب سے ہمارے پاس 4 تھے. اسم مفرد منصرف، منصرف وہ جو تینوں حالتوں میں 3 شکلیں بناتا ہے. غیر منصرف جو تینوں حالتوں میں 2 شکلیں بناتا ہے، جس کا نصب اور جر زبر کے ساتھ آتا ہے. جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے، اس کا جو نصب اور جر ہے یہ ہمارے پاس زیر کے ساتھ آتا ہے. اور جمع مکسر منصرف، اس کا اعراب بالکل اسم مفرد منصرف جیسا ہوتا ہے، یعنی 3 حالتوں میں 3 شکلیں ہی ہوتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ بھی منصرف لگا ہوا ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم معربہ بالحروف، یعنی ایسے معرب اسما جب ان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ تبدیلی حروف کے تھرو ہم لوگ ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس 3 طرح کے ہیں: ایک تثنیہ، ایک جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ. ہم نے جمع کی 2 اقسام پڑھی تھی نا، مکسر اور سالم. سالم میں بھی 2 کیٹیگرائزیشن آ جاتی ہیں، مؤنث سالم الگ ہوتا ہے، مذکر سالم الگ طریقے سے بنتا ہے. تو ہم نے مکسر بھی پڑھ لیا اور سالم کے اندر ہم نے جمع مؤنث سالم کا اعراب پڑھ لیا. اب صرف ہمارے پاس جمع مکسر سالم کا اعراب بچا ہے. ٹھیک ہے. اور واحد مثنیٰ جمع میں ہم نے واحد بھی پڑھ لیا، صرف ہمارے پاس مثنیٰ یعنی تثنیہ رہتا ہے اور جمع بھی ہو گیا سارا. ٹھیک ہے. اور اسماء ستہ بھی ایک کیٹیگرائزیشن ہے، انشاءاللہ ہم آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تثنیہ سے. اچھا، یہاں پہ میں نے ڈیفینیشن لکھی تھی: اسماء معربہ بالحروف ایسے اسما کو کہتے ہیں جن کے اعراب یعنی رفع، نصب اور جر جو حالتیں ہیں وہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ وہ حروف کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، حرکات سے نہیں ظاہر ہوتے. ٹھیک ہے. سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تثنیہ. یہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. رفع والی شکل اور نصب اور جر سیم ہوتی ہے ان کی. اب تثنیہ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ہم نے تثنیہ کی ایک نشانی پڑھی تھی کہ جب بھی ہم لوگ واحد کے اینڈ میں الف نون کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ مثنیٰ بن جاتا ہے. جیسے مسلم ان سے مسلمانی. ٹھیک ہے. عابد ان سے عابدانی، ساجد ان سے ساجدانی. ٹھیک ہے. الف نون کا اضافہ. اور اگر وہ مؤنث ہے جیسے مسلماتن، پھر بھی الف نون کا اضافہ ہوتا ہے، مسلماتن تانی، مسلمتانی. ٹھیک ہے. اب جو تثنیہ کی حالت رفع ہوتی ہے وہ تو الف نون کے ساتھ ہی آئے گی، اپنی اصل حالت میں ہی آئے گا. جیسے کتابن سے کتابانی، حالت رفع الف کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ نصب یا جر میں جائے گا نا تو جو یہ الف ہے نا، یہ والا الف، الف نون والا، اس الف کو ہم لوگوں نے یا سے بدل دینا ہے، سمپل، اور کچھ بھی نہیں کرنا. پھر یہ کتاب با، با کے بعد جو یا آئے گی، یا کے اوپر جزم ہوگی، بینی بن جائے گا نا، بانی سے بینی. جب ہم یا کا اضافہ کریں گے تو پھر نصب اور جر میں یہ کیا ہوگا؟ کتاب بینی، کتاب بینی. مجہول ساؤنڈ آتی ہے اوپر سے نیچے، با کے بعد جزم ہے نا، سکون کی حالت ہے، بینی، اوپر سے نیچے ساؤنڈ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اگر آپ لوگ یہاں پہ مثالوں میں دیکھیں، رفع میں الف پلس نون آ گیا، آنی کی ساؤنڈ آتی ہے،
जाअत तालिबानी, दो तालिब आए। फिर नस्ब और जर, आखिर में अलिफ नून की बजाय या नून आएगा। अलिफ को हमने रिप्लेस कर दिया या के साथ। अब राअइतु तालिबैनी, मैंने दो तालिब देखे। मररतु बित्तालिबैनी, बाज़र बी की वजह से तालिबानी जो है वो हालते जर में चला गया, क्योंकि यहाँ पे बाज़र बी लगी है, तो मैं दो तालिब के पास से गुजरा। मररतु बित्तालिबैनी। अब मैं इसकी ना आपको मज़ीद थोड़ी एग्जांपल सिखाती हूँ। तस्निया है ना, जैसे राजुलुन, एक आदमी को कहते हैं और उसका मुसन्ना हम क्या बनाते हैं? राजुलानी। ठीक है? सॉरी, यहाँ पे ना जमा मुअन्नस की बजाय जमा मुज़क्कर आना था। राजुलानी, ला अलिफ ज़बर ला, इस अलिफ को या से बदल दें। राजुलैनी, राजुलैनी, यहाँ पे भी राजुलैनी आना था। सालिहानी, सालिहैनी, सालिहैनी। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। कलमानी, कलम उनकी जमा होती है, क्या क्या मुसन्ना होता है ना, कलमानी। कलमैनी, कलमैनी। किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। अच्छा, ये तो हो गया तस्नीया का इराब। ये सिर्फ प्रैक्टिस से से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है? हमने क्या किया, हमने सिर्फ अलिफ को या से बदल दिया, हमने और कुछ भी नहीं बदला। अब देखते हैं जब हम मुज़क्कर सालिम का इराब। रफ़ा, नस्ब और जर। ठीक है? ये भी 3 हालतों में 2 शक्लें रखते हैं। रफ़ा में क्या होती है हालत, जब हम मुज़क्कर सालिम बनता कैसे है? सिर्फ वाव नून का इज़ाफ़ा करते हैं ना, मुस्लिमुन के एंड में वाव नून लगाएँ, मुस्लिमूना बन जाएगा। अब जब जमा मुज़क्कर सालिम हमने बना लिया मुस्लिमूना, अब उसकी हालतें कैसे बदलेंगी, इराब कैसे बदलेगा? मुस्लिमूना, वाव को आपने या से ही चेंज करना है, और इसमें इसमें भी कुछ नहीं करना। इसमें भी जो वाव है, वो या से बदल जाएगा। अब मुस्लिमूना था ना, वो मुस्लिमीना बन जाएगा। अब ना मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ, हुआ क्या है। ये था मुस्लिमूना, वाव को हमने बदला या से। अब या से पहले था पेश, लेकिन जब भी या आती है, या तकाज़ा करती है कि मेरे से पहले हमेशा ज़ेर ही आए, ठीक है? ये अरेबिक का रूल है, यहाँ से पहले हमेशा ज़ेर ही होता है। तो फिर जो मीम पेश मुँह था ना, वो मीम ज़ेर मीम में चेंज हो गया। जो पेश था उसको हमने ज़ेर में बदल दिया, क्योंकि या ये हमसे तकाज़ा करती है कि मेरे से पहले ज़ेर ही आना चाहिए। तो मुस्लिमूना से क्या बन गया? मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब आपके ज़हन में ना बहुत सारे वर्ड्स आ गए होंगे कुरान पाक के, मुत्तकीना, ज़ालिमीना, काफ़िरीना। अब समझ आया, ये सारे हैं तो जमा मुज़क्कर सालिम ही, लेकिन इनकी हालतें बदल गई हैं। कहीं पे ये नस्ब है, कहीं पे ये जर है। जर का मैंने आपको बता दिया, जब भी हरफ़े जार में से कोई हरफ आता है तो वो हालतें जर में चला जाता है इसम। एक दो और भी कॉजेज़ हैं, इसकी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं इसकी ना आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाती हूँ। जैसे जैसे है साबिरूना, हालत नस्ब और जर क्या बनेगी? साबिरीना, साबिरीना। सालिहूना, सालिहीना, सालिहीना। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ज़ालिमूना, ज़ालिमीना, ज़ालिमीना। शाकिरूना से फिर शाकिरीना, शाकिरीना। यहाँ तक क्लियर है आपको? इसकी ना सिंपल, अगर मैं आपको शॉर्ट करके बताऊँ ना, देखिए, मुसन्ना की अलामत क्या होती है? एंड में आता है अलिफ नून, राइट? जमा की एग्ज़ाम्पल क्या होती है? अलामत क्या होती है? जमा की, जमा मुज़क्कर सालिम की हम एंड में लगाते हैं वाव नून। तो मुसन्ना का अलिफ और जमा मुज़क्कर सालिम का वाव, अलिफ नून और वाव नून में से अलिफ और वाव को या से बदल दें, तो मुस्लिमानी से वो बन जाएगा मुस्लिमैनी, क्योंकि अलिफ को चेंज कर दिया या के साथ। और मुस्लिमूना, वाव नून था, वाव को हटा के या लगा दिया, तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमूना से मुस्लिमीना। सिंपल। क्योंकि इनमें हरूफ के थ्रू चेंजेस आ रही हैं, तो इसीलिए इनको हम मुअर्रब बिल हरकत बिल हरूफ कहते हैं। ठीक है? अब आखिरी आ जाती है हमारे पास 7th कैटेगरी, ये लास्ट है। अच्छा, उससे पहले ना ये मैंने एक चार्ट बनाया था। एक लफ्ज़ लिया हमने मुस्लिमुन, पहले है वाहिद मुज़क्कर, ठीक है? अब हम इसके इराब देखते हैं कैसे बनते हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब इस वाहिद मुज़क्कर मुंसिफ का तस्निया कैसे बनता है? मुस्लिमुन के एंड में आपने लगा दिया अलिफ नून, मुस्लिमानी, ठीक है?
अब ज़रा इसके इराब देखें, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, फिर जमा मुज़क्कर सालिम आ जाता है। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, इसी तरह बनाते हैं ना हम वाहिद, तस्निया और जमा। अब जमा का अगर आप इराब देखें तो क्या बनेगा? मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब पहले ये मुज़क्कर के थे, अब हम देख लेते हैं मुअन्नस के। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का मुअन्नस कैसे बनाते हैं हम सिफ़ात का? एंड में ताए मरबूता लगा के। मैंने ताए मरबूता लगा दी, मुस्लिमातुन। अब मुस्लिमातुन मुअन्नस का इराब कैसे बनता है? सेम मुज़क्कर की तरह बनता है, लेकिन एंड में ये अलिफ नहीं आता, अगर आपको पुराना लेक्चर याद हो, ये वाला अलिफ, ठीक है? तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन। अब जब हम इसका मुसन्ना बनाएँगे, तस्निया बनाएँगे, अलिफ नून का इज़ाफ़ा करेंगे, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। अब जमा मुअन्नस सालिम, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जमा मुअन्नस सालिम। मैंने इसके इराब भी साथ ही ऐड कर दिए ताकि चार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है? मैं अब आप लोगों को मज़ीद इस तरह के हरूफ दूँगी और आपने ये चार्ट बनाना होगा, इससे आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं आखिरी टाइप की तरफ, 7th टाइप जो है हमारे पास इस्माए सित्ता। ये हमारे पास 6 हैं। कहीं पे इस्माए खम्सा के तौर पे भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, यानी 5। सित्ता का मतलब होता है 6। हमारे पास ये 6 ऐसे अस्मा हैं, ये हैं तो इसम, लेकिन इनके इराब डिफरेंट होते हैं जब ये मुज़ाफ बनते हैं, यानी जब ये किसी और इसम के ताल्लुक में आते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरा बाप, बाप का मेरे से ताल्लुक कायम हो गया ना, ये मेरा बाप से, ठीक है? तो मुज़ाफ मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाया था ना, इसमें मारफ़ा की जो 7th टाइप थी हमारे पास, वो मुज़ाफ थी। मुज़ाफ हमारे पास इसमें मारफ़ा होता है। तो जब ये 6 अस्मा मुज़ाफ बनते हैं, तो इनका जो इराब है, वो नॉर्मल वाहिद मुनसिफ की तरह नहीं आता। जैसे अबुन, अबन, अबिन, अखुन, अखन, अखिन, हमुन, हमन, हमिन, फमुन, फमन, फमिन, ठीक है? ज़ू, ज़ा, ज़ी, हनुन, हनन, हनीन, इस तरह नहीं आता। ये इनके नॉर्मल इराब हैं, ठीक है? जब ये मुज़ाफ नहीं है, लेकिन जब ये मुज़ाफ बनते हैं, फिर इनका इराब जो है, वो डिफ़रेंट तरीके से आता है। रफ़ा में वाव के साथ आता है, नस्ब में अलिफ के साथ आता है और जर में या के साथ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करती हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब मैंने एक मुरक्कब बनाया, मैंने एक ताल्लुक़ कायम किया, अज़ाफ़त जिसको मैंने आपको पढ़ाया था, निस्बत कायम की, अबू का, तुम्हारा बाप, ठीक है? जैसे हम कहते हैं किताबुल्लाहि, अल्लाह की किताब, ठीक है? इसी तरह मैं एक ताल्लुक़ कायम कर रही हूँ अबू का, तुम्हारा बाप, आपका बाप, ठीक है? जब ये हालत रफ़ा में आएगा, ठीक है? जब ये सेंटेंस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ लें ये फ़ाइल बन रहा है, ठीक है? तो हम लिखेंगे इसको अबुन को वाव के साथ, अबू का, ठीक है? जब ये हालत नस्ब में जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ ये मफ़ऊल बन रहा है, अगर हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, तो अबुन जो है, वैसे तो अबुन का जो नस्ब था वो अबन था ना, लेकिन ये क्या बनेगा? अलिफ के साथ आएगा अबा, अबुन, ठीक है? अलिफ। फिर अगर मैं कहूँ ये हालत जर में है, तो ये या के साथ आएगा अबई का। रफ़ा में वाव के साथ, नस्ब में अलिफ के साथ और जर में या के साथ। फिर इसी तरह अखू का, अख़ा का, अख़ी का। हम पढ़ते हैं ना अख़ई का तुम्हारा भाई, अखू का तुम्हारा भाई, अख़ा का तुम्हारा भाई। तो ये जो शक्लें बदल रही होती हैं, इसका मतलब है इनका सेंटेंस के अंदर स्टेटस बदल रहा है, इसलिए इनकी शक्ल बदल रही है, लेकिन मीनिंग नहीं बदल रहा, ठीक है? इसी तरह ये 6 अल्फ़ाज़ हैं, जो अपनी शक्लें बदल रहे होते हैं जब ये मुज़ाफ़ बनते हैं। अगर ये मुज़ाफ़ नहीं बनते, फिर जो इनके इराब हैं, वो सिंपल ही आएँगे, जिस तरह से हमने पहले पढ़े हैं। वाहिद मुनसिफ की तरह अबुन, अबन, अबिन, ठीक है? अब मैंने ना इन सब के इराब लिखे हैं, जैसे अखू का, अख़ा का, अख़ी का, हमुन से हमू का, हमा का, हमी का। अच्छा, फ़मुन जो है ना, उसमें मीम जो है वो मज़ूफ़ हो जाता है, छुप जाता है। फ़ू का, फ़ा का, फ़ी का, ज़ू मालिन, ज़ा मालिन, ज़ी मालिन। कुरान पाक में है ना, इंदहु ज़िल अर्शिल मजीद, शायद यही सेंटेंस है। जो ज़ी है, वो यही ज़ी है। ज़ी का मतलब होता है वाला, साहिब। फिर हनू का, हना का, हनी का, अबू का, अबा का, अबीब का। और इस्माए सित्ता की ना ये कुछ शराइत हैं, ये मैंने लिख दी हैं। ये मुज़ाफ़ होना चाहिए और वाहिद होना चाहिए, तब इनके इराब इस तरह से बदलेंगे, शक्लें बदलेंगी। अगर मुज़ाफ़ नहीं है और वाहिद नहीं है ना, फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और
ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہیں ان کا جو مضاف ہے کہ وہ کسی ضمیر کے ساتھ بنے، اسم کے ساتھ بھی بن سکتا ہے، ضمیر کے ساتھ بھی بن سکتا ہے، لیکن ضمیر یا متکلم والی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یا متکلم، کیونکہ ہم نے نصب اور جر کے ابھی ضمائر نہیں پڑھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کو ضمائر بھی نصب اور جر والے کروا دوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ لوگوں کو یہ یا متکلم کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو زو ہے وہ ہمیشہ اس میں ظاہر کے ساتھ آتا ہے، وہ ضمائر کے ساتھ نہیں آتا، کیونکہ یہ جو کاف زبر کا ہے یہاں پہ ضمیر آئی ہے اور یہ نصب اور جر والی ضمیر ہے۔ انشاءاللہ جب ہم لوگ نیکسٹ لیسن کے اندر ضمائر پڑھیں گے پھر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ اب ان کی کچھ ایگزامپلس میں آپ لوگوں کو قرآن پاک سے پریکٹس کروا دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ریکارڈنگ یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔